নমস্কার, আপনারা দেখছেন কলকাতা 24x7 আর আমি তন্নিষ্ঠা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আমরা খুব খারাপ একটা সময়ে এখন দাঁড়িয়ে আছি। বিগত 4 মাস হয়ে গেল আমরা অলমোস্ট গৃহবন্দী অবস্থায় আছি। আর আমরা বোধহয় সবাই এখন একটা জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছি, যার নাম ভ্যাকসিন। একটা ভ্যাকসিনই শুধু পারে আমাদেরকে একটু রেহাই দিতে, একটু মুক্তি দিতে। আর ইতিমধ্যে কিন্তু অক্সফোর্ড থেকে সেই ভ্যাকসিন নিয়ে একটা সুখবর আমরা পেয়েছি, যদিও সেটা প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, কিন্তু সেখানে একটা আশার আলো দেখা গিয়েছে যে সেখানে ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে সেই ভ্যাকসিন থেকে। আর সেই অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিন, সেখানকার যে হিউম্যান ট্রায়াল, সেখানে অংশ নিয়েছিলেন একমাত্র ভারতীয়। তিনি রয়েছেন আজকে আমাদের সঙ্গে, মিস্টার দীপক পালিওয়াল। সরাসরি ইউকে থেকে তিনি রয়েছেন আমাদের অতিথি হিসেবে, এবং তিনি কেমন আছেন, তার কি এক্সপিরিয়েন্স, সেই সবটা তার কাছ থেকে শুনবো। কিভাবে তিনি এই ট্রায়ালে অংশ নিলেন এবং তারপর তার কিছু হয়েছে কিনা সেগুলো আমরা শুনবো তার কাছ থেকে। আর আমার সঙ্গে আরো একজন অতিথি রয়েছেন, সুপ্রিয়া ব্যানার্জি, যিনি NSHM নলেজ ক্যাম্পাসের হেড লাইব্রেরিয়ান। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে যখন মিস্টার পালিওয়ালের কথা হয়, উনি কিন্তু বারবার বলেছিলেন যে আমার কলকাতা কানেকশন আছে, এবং উনি যেহেতু বাংলা বলতে পারেন না, তো সুপ্রিয়াদি হচ্ছেন মিস্টার পালিওয়ালের দিদি এবং ওনার ফ্যামিলি। তো সেই জন্য সুপ্রিয়াদিকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়েছি। উনি কলকাতাতেই থাকেন দীর্ঘদিন ধরে, যদিও উনি প্রবাসী, উনি কলকাতার নন, কিন্তু তাও উনি বেশ সুন্দরভাবে বাংলা বলতে পারেন। তো ওনার কাছ থেকেও নিশ্চয়ই অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প শুনবো আমরা। তো প্রথমেই মিস্টার পালিওয়ালের কাছে চলে যাচ্ছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো, মিস্টার পালিওয়াল। Thank you. First of all, heartiest congratulations to you for what you have done, and it's, I think, for the sake of humanity, what you have done. So, congratulations. And आज पहले मैं जो पूछना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीन है, जो आई थिंक दिस वैक्सीन कैन सेव द एंटायर वर्ल्ड लिटरली। तो ये वैक्सीन ऑलरेडी आपने लिया है, आपको दिया गया है, तो ये लेने के बाद आप कैसे है, आपके ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ और इट्स जस्ट नॉर्मल? नहीं, ये हमने लिया था 11 मई को, और आज की डेट में लिटरली 70+ डेज हो गए हैं इसको लिए हुए। हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो एक नॉर्मल लाइफ चलती है बिल्कुल चल रही है। और जो वैक्सीन का असर, जो रिजल्ट आया है अभी एक ऑलरेडी आपने लिया? बिल्कुल, ये वैक्सीन हमको ट्रायल में दिया गया था, 1000 बंदों को दिया था, और उसमें से हम एक थे, और ये दिया था 11 मई को। और अभी एक वीक पहले ऑक्सफोर्ड का रिजल्ट आया है कि जो भी वैक्सीन का रिजल्ट होना था वो सब में देखा जा रहा है, मतलब एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। हाँ, तो ये खबर सुन के आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने जो इतना रिस्क उठाया ये वैक्सीन लेने के लिए, तो उसके बाद एक पॉजिटिव खबर, हो सकता है कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट तो है। इट्स अ रे ऑफ होप। सो ये सुन के आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा ही लगा, क्योंकि एक अभी कुछ ही और कोई पॉजिटिव न्यूज आ ही नहीं रही थी कहीं से भी। तो एक ये कम से कम एक वैक्सीन तो चल रही जो फेज 3 में है, एक और वैक्सीन है फेज 3 में, उसका भी मतलब ये सक्सेस हो कि कोई और वैक्सीन सक्सेस हो, वैक्सीन आनी चाहिए अब जल्दी से जल्दी, बहुत हो गया। हाँ, সুপ্রিয়া দি, আপনার কাছে আসবো। আপনার এত ক্লোজ একজন এরকম একটা ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছে ভলেন্টিয়ার হিসেবে, এবং সেই অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের রেজাল্ট ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি, মানে একদম প্রাথমিক স্তরের যে রেজাল্ট সেটা আমরা শুনতে পেয়েছি, এবং সেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ইট ট্রিগার্স ইমিউন রেসপন্স, এবং সেখানে অ্যান্টিবডি এবং টি সেল তৈরি হচ্ছে, যেটা কি খুবই আশার কথা। তো এটা শুনে আপনার কি মনে হয়েছে, এবং আপনি এই ভ্যাকসিনটা নিয়ে কতটা আশাবাদী? আশা এখন বলতে পারবো না। প্রথম কথা বলবো যে যখন ও আমাকে ফার্স্ট ডে বলেছিল যে আমি এরম এরম করেছি, আর ও লিখেছিল আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে, ফার্স্ট জিনিস আমি ওটাকে দুবার পড়লাম। আমি আই রেড ইট টুয়াইস থ্রাইস, যে মানে তারপরে আমি ওকে বললাম কিউ, মানে প্রথম কথা আমি ওকে বলছিলাম কিউ কিয়া, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দেন আই রিয়েলাইজ, পরে হয়তো বন্ধ করার পরে আমার মনে হলো যে ফার্স্ট অফ অল যে এটা ও করেছে, ঠিক আছে, ইট ইজ ভেরি লাইক দীপক, লাইক যদি এটা না করতো তাহলে হয়তো প্রশ্ন করতাম, ভাবতাম যে মানে যেহেতু করেছে এটা ওই করতে পারে, মানে এটা এতটাই প্রেডিক্টেবল যে ও একটা
আনপ্রেডিক্টেবল জিনিস করবে, ঠিক আছে? সো হি ডিড ইট অ্যান্ড কিপ, মানে ফিঙ্গার্স ক্রস। আমি তো আশা করি যে ভালোই হবে, সবই ভালো হবে, ওটাই মেনে চলছি। দুটো করে নিয়েছে, আরো ট্রায়ালস ক্রস করে যাবে। তো ও সুস্থ থাকুক, এটাই আর কি সবার জন্য আচ্ছা, একটা আপনি উনি কি ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে আপনি জানতে পেরেছেন যে উনি নিয়েছেন? नहीं, ও লিখেছে যে হাম ভলেন্টিয়ার কিয়ে হ্যাঁ, মানে না আগেই ও যখন ভলেন্টিয়ার করেছে তখন করেছে। আর তারপরে তো সপ্তাহে সপ্তাহে ও বললো আমি যাই, দেখা করি, নর্মাল ডিল করে, হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় আমাদের ওটা নিয়ে। তো সেটাই। ओके, दीपक जी, आपको बहुत लोगों ने सैल्यूट कह रहा है, बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है। यहाँ पे हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेशन सैल्यूट ये सब कह रहा है। तो मिस्टर पालीवाल, और एक बात जो बहुत लोगों ने सोचता है ये ह्यूमन ट्रायल के बारे में कि ह्यूमन ट्रायल जो होता है it can be dangerous, and you know that because you are a pharmacist, you know that very well, and it can be deadly also. मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ डर आपको लगा नहीं? डर था, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डर नहीं था, डर तो था। तभी बहुत कम लोगों को बताया था कि यदि कुछ भी हो तो मतलब तो यदि कुछ हो तो कहीं से तो कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन डर नहीं था इतना, लेकिन हाँ करना था, सोच लिया था। क्योंकि एक फेज ये 2 था। फेज 1 होता है एनिमल स्टडी जिसमें सेफ्टी के बारे में देखा जाता है, और फेज 2 था ये जो वॉलेंटियर्स के लिए था। तो 1000 में एक थे, तो बाकी सब 999 ने भी रिस्क लिया ही था। और यदि कोई रिस्क नहीं लगा तो शायद कोई क्लिनिकल ट्रायल होगी नहीं कभी भी कहीं पे भी। तो कोई यदि रिस्क लेगा तो ही क्लिनिकल ट्रायल होगी। और अब फेज 3 शुरू हो चुका है जून मिड में। तो अब देखते हैं, आई थिंक अगस्त एंड सितंबर तक इसका फेज 3 का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए, और एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। डर तो क्यों नहीं लगा? डर लगा, इनसे खूब डांट खाई अपनी बहन से। ये उन्होंने पहले तो बोला ये क्या करता रहता है रोज, मैसेज पे ही बोला था कि ये करता क्यों है फालतू का। एंड शी इज वेरी इमोशनल ऑल्सो, तो उसको वो भी डर भी था, इनको हमसे ज्यादा शायद इनको डर था। और बाकी जो अपने जो फैमिलीज है, जो रिलेटिव्स है, उनको भी आपने वैक्सीन लेने के बाद बताया? नहीं, उनको तो और 1.5 महीने बाद बताया था अपनी माँ को। तो उनको तो 1.5 महीने बाद? इनको तो पहले बता दिया था, जिस दिन लिया था शायद उसी दिन बता दिया था, 1 या 2 दिन में। माँ और उधर जयपुर में तो किसी को बता भी नहीं सकते थे क्योंकि डांट ही खाते। तो जब वो सेफ पीरियड हो गया था खत्म, तो जाके उनको बताया। तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? उनका भी यही हम जानते हैं कि ये इंडियन फैमिलीज बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं अबाउट देयर सन, वो भी घर से इतना दूर। जो इनका रिएक्शन था वही उनका था कि ये ऐसे देखते थे कि काम कब करना बंद करोगे। वो मतलब जितनी जल्दी बंद करो उतना अच्छा। और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स भी पूछना चाहेंगे कि ये प्रोसीड्योर क्या है, मतलब अब कैसे अप्लाई किया या क्या क्या हुआ आपके साथ, ये जो इंटायर जो प्रोसीड्योर? हमको एक दोस्त ने बताया था कि ऐसी एक ट्रायल शुरू होने वाली है, अप्रैल फर्स्ट वीक की बात होगी। ऑनलाइन जाके अप्लाई किया, उनका एक मैसेज आया कि आप स्क्रीनिंग के लिए आओ, क्योंकि उनको हेल्दी वॉलेंटियर्स चाहिए थे। तो वहां पे गए स्क्रीनिंग के लिए 16 अप्रैल को। उन्होंने पूरा बॉडी चेकअप किया कि बॉडी फिट है कि नहीं है, और उसके बाद उन्होंने हमको एक डेट दी 11 मई को कि इस दिन आके वैक्सीनेशन का शॉट लो। 11 मई को गए, वैक्सीन का शॉट लिया, और फिर उन्होंने एक ई डायरी फिल करने को दी। तो एवरी डे इवनिंग आई हैड टू फिल अप अ ई डायरी कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कि बुखार तो नहीं है, खांसी नहीं है, और जो भी पैरामीटर्स डिफरेंट थे। तो 1 महीने तक ये ई डायरी फिल करी गई। एक 7th डे को एक और टेस्ट हुआ था, और एक 29th डे को उन्होंने फुल बॉडी चेकअप किया था कि कुछ रिएक्शंस तो नहीं है। तो बस उसके बाद हर महीने जाते हैं, हर वीक भी बीच में बुलाते हैं, जब वो बुलाते हैं तब चले जाते हैं। और अब 90th डे पे एक वापस पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा।
आपका आपका जो चेकअप या स्क्रीनिंग हुआ वो किस तरह का स्क्रीनिंग हुआ, मतलब ये जो ब्लड टेस्ट या स्कैन यूएसजी ऐसा कुछ हुआ क्या? इस ब्लड टेस्ट तो होना ही था, और साथ में पूरा ऐसे वो देखते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, लाइक डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, अस्थमा नहीं है, क्योंकि यही जो बीमारियां हैं ये कोमॉर्बिड यदि साथ में होती हैं कोविड के, तो ये डेडली होता है। तो अपन ने देखा भी होगा, जिसको डायबिटीज है उसको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है, या अस्थमा है उसको जल्दी हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 भी एक लंग्स डिजीज है। तो ये वो चेक करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है आपको। हमारे एक व्यूअर हैं अरूप गोस्वामी, वो बोल रहे हैं कि वो भी ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो प्रोसीडिওর জাননা চাতে हैं। অরূপ গোস্বামী, তো আপনাকে আপনি শুনতে থাকুন, আমরা সেই প্রসিডিওর নিয়ে কিন্তু কথা বলছি মিস্টার পালিওয়ালের সঙ্গে, এবং উনি কিন্তু বিস্তারিত জানাচ্ছেন। আপনি চোখ রাখুন, নিশ্চয়ই এটা জানতে পারবেন, এবং আরো অনেক কমেন্টস আসছে, আমরা নিশ্চয়ই সব उत्तर देवार चेष्टा करब। मिस्टर पालीवाल, और एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ये जो ट्रायल था ये हेल्दी लोगों के लिए था, तो कोमॉर्बिडिटीज नहीं होना चाहिए था। तो अगर किसी का कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, क्या वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते इस तरह के ट्रायल में? नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि वो पहले ही एक डेंजर में है, तो क्यों उनको कोई भी क्लिनिकल रिसर्च टीम उनको दिक्कत डेंजर में नहीं डालेगी, कभी नहीं डालेगी। लेना भी नहीं चाहिए, आपको पता हुआ है तो खुद ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना पड़ता है कि उसके ऊपर इस वैक्सीन का असर क्या होता है या नहीं। वो कोई भी आपकी लाइफ के साथ रिस्क मिलेगा। तो पहले जो फेज 2 होती है वो सेफ्टी देखते हैं दवाई की, ये जो भी वैक्सीन है। कोई मान लो टेबलेट हो, कुछ दे दो एक, और कुछ रिएक्शन हो तो टेबलेट नेक्स्ट दिन से बंद कर सकते हैं। ये वैक्सीन है, ये बॉडी में चली गई तो उसके बाद निकाल नहीं सकते इसको। तो किसी को भी है, प्लीज आप लोग मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, घर पे रह के मास्क पहन के कहीं आप चले जाएं टेस्ट हो वैक्सीन में पार्ट लेने। ওকে, তো যারা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এই পরামর্শই উনি দিচ্ছেন যে তাদের যদি কোনো কোমরবিডিটিস থাকে তারা কিন্তু এরকম কোনো প্রোগ্রামে অংশ নেবেন না। এটা আপনার জন্যই ঝুঁকির होते पारे बा रिस्केर होते पारे। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन है ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो आम में दी जाती है। ओके, तो उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हुआ? वो अभी तक तो कुछ नहीं, वैसे बस खा खा के ज्यादा मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन का रिएक्शन नहीं है, वो ज्यादा खाते हैं तो हो रहे हैं, बाकी कोई रिएक्शन नहीं। कोई एडवर्स रिएक्शन या कोई कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो हमने ऑलरेडी सुना है कि ऑक्सफोर्ड के जो रिपोर्ट्स आए हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि ये सेफ है, मतलब फर्स्टली जो ऑब्जर्व किया है रिसर्चर्स ने, देखा है कि ये सेफ है। मतलब आपने बोला कि 1000 लोगों ने ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गया, तो किसी के ऊपर कोई एडवर्स रिएक्शन अभी तक तो नहीं, जो स्टडी रिलीज हुई है उससे कुछ दिख नहीं रहा, अभी तक तो नहीं है। अब उसका फेज 3 शुरू हो गया, तो 10,000 पे शुरू हुआ है, और 5 कंट्रीज जिसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया है। और इंडिया में भी वो जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने भी ये ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेशन में काम करा है, तो वो भी इंडिया में वैक्सीनेशन ह्यूमन ट्रायल शुरू करना चाहते हैं। तो दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड। हमको ये पता है वो लोग मैन्युफैक्चरिंग जरूर कर रहे हैं, ट्रायल शुरू कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता। সুপ্রিয়া দি, আপনার কাছে একটু যাবো যে আমি জানতে চাইবো যে ভারতে তো এই ধরনের হিউম্যান ট্রায়াল এবারে শুরু হচ্ছে, এবং ভারতের যে ভারত বায়োটেক একটা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে যেটা কোভ্যাক্সিন, এবং সেটার হিউম্যান ট্রায়াল কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটা শহরে শুরু হয়েছে। এছাড়া এই সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া যে কথাটা আমি বললাম, ওরাও ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম শুরু করতে চাইছে। তো ভারতে যদি শুরু হয় বা আপনার কাছে যদি সুযোগ আসে, তাহলে আপনি কি সেখানে পার্টিসিপেট করতে চাইবেন বা আপনি কাউকে ইন্সপায়ার করবেন পার্টিসিপেট করার জন্য? करना चाहिए। ইন্সপিরেশনের মধ্যে দীপকই যথেষ্ট, বাট হ্যাঁ, আমার যদি হেলথ পারমিট করেন, ইফ আই এম ফিজিক্যালি ফিট, লাইক এ তো বলেই দিল, আমার তো এজ ফ্যাক্টর যদি না হয়, আর স্ক্রিনিং এ যদি ইফ আই ক্যান, বিকজ 1000 মানে বুঝতে পারছো অত বড় কান্ট্রির মধ্যে 1000 কে সিলেক্ট করেছে, নিশ্চয়ই স্ক্রিনিং হয়েছে, নিশ্চয়ই লোক বাদ গেছে। তো সেরকম যদি আমার সুযোগ হয়, যদি আমি ইফ আই ক্যান ভলেন্টিয়ার, ইফ আই এম ফিট ফর দ্য ট্রায়াল, সো কেন যাব না? ডেফিনেটলি। আগে তো যদি নাও যেতাম, এখন এটা শুনে তো আরো যেতে মানে ইচ্ছে করছে।
I'm really inspired by him. Yes, I'm really inspired. और मिस्टर पालीवाल, क्या एज का कोई क्राइटेरिया था? नहीं, एज का क्राइटेरिया था, दे वांटेड बिटवीन आई थिंक 25 to 50 इन फर्स्ट फेज, क्योंकि इनको जो हेल्दी वॉलंटियर्स को मान लो कुछ दवाई इस वैक्सीन का एडवर्स रिएक्शन होता तो बॉडी कैन मतलब बॉडी कैन सपोर्ट दैट, वो होता है एज का। अब जो फेज 3 में एज है वो 18 to आई थिंक 75 कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि फेज 2 में भी सक्सेसफुल था और सेफ थी, तो फेज 3 में तो मतलब सेफ होगी। ओके, और I just have one question to Deepak directly. हाँ, निश्चय, Phase 3 में क्या तुमको दोबारा इंजेक्ट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, तो अभी हमको क्या What is phase 3 then? Like, I mean, just एक out of curiosity पूछ रही हूँ कि what is phase 3? See, phase 2 में 1000 थे, phase 3 is 10,000 and a broader age group and broader race, like country wise also. So they have gone to Brazil, South Africa, तो हर बॉडी एक अलग ढंग से रिएक्ट करती है फॉर अ वैक्सीन। तो जैसे इंडियन जीन्स अलग, जैसे हमने पार्टिसिपेट किया तो उनको पता है कि हाँ हाउ इंडियन बॉडी और जीन्स विल रिएक्ट टू वैक्सीन। तो फेज 3 हमेशा ब्रॉडर रेंज होता है, एज ग्रुप बड़ा होता है, और हमको फॉलो अप करेंगे वो लोग फॉर 1 year दे विल फॉलो अप। तो वो वैक्सीन वापस नहीं देंगे, बट फेज 2 इज द फर्स्ट वन, तो 1 साल तक फॉलो अप होगा। फेज 3 विल बी 1 year फॉलो अप। एंड मिस्टर पालीवाल, आपने ये पहले बताया है कि आप वो 10 वॉलंटियर में से एक है जिसके ऊपर दोनों वैक्सीन का डोज दिए गए हैं। तो ये दोनों वैक्सीन क्या है और क्यों आप 10 को क्यों सिलेक्ट किया गया? तो एक तो ये रैंडम ट्रायल थी, तो बाय कोई ये नहीं था कि हमको ही वो 2 देंगे। ये लोग अभी देख रहे हैं कि 1 डोज से असर पड़ता है कि 2 डोज चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल है क्लिनिकल रिसर्च। तो मतलब ये दोनों डोज ही कोविड का डोज है, कोविड वैक्सीन का डोज है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला 1 दिया गया, दूसरा 1 वीक बाद दिया गया। तो जैसे अभी इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल हो रही है वो हो रही है कि उसमें 2 इंजेक्शन ही लगने, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की क्लिनिकल ट्रायल है वो 1 इंजेक्शन की है। लेकिन वो लोग क्या देख रहे थे कि एंटीबॉडीज कितने दिन में पीक होती है। तो जैसे एंटीबॉडीज 29 डेज में पीक हुई यहाँ पे, और टी सेल्स हुए 14 डेज में। जैसे आपने सुना ना बूस्टर डोज, कई जगह जैसे हेपेटाइटिस की एक बूस्टर डोज मिलती है, तो अभी ये केवल रिसर्च चल रही है कि इस वैक्सीन की बूस्टर डोज भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे एक और क्लैरिटी आई। ओके, और एक बातें चल रहा है कि जिसको कहा जा रहा है कि चैलेंज ट्रायल नाम का एक चीज होता है जहाँ पे वैक्सीनेटेड लोगों को वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है। ऐसा कुछ आपको इसके बारे में कुछ पता है? पता है, लेकिन आई विल नॉट सपोर्ट दैट, क्योंकि फिर ये जो लैब में जो होते हैं ना अपने बायोकेमिस्ट और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या फायदा? तो जैसे हाउ डू दे नो कि हमें मतलब एंटीबॉडीज होगी? वो ब्लड लेते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, उसको कल्चर करेंगे, दे विल एक्सपोज टू वायरस। आई थिंक ये बहुत ही गलत बात होगी कि किसी भी ह्यूमन को आर्टिफिशियली आप कोविड का इन्फेक्शन कराएं। आई विल नॉट सपोर्ट दैट, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ही गलत हो जाएगा। मतलब एक मान लो उस बंदे के साथ सही में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पहले भी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। पहले एक वैक्सीन का डर है कि एक केमिकल जा रहा है बॉडी में, क्या होगा, और ऊपर से आप ये और कि नहीं अब तेरे को वायरस भी देंगे, वो तो यही नहीं मानेंगे, हमारी बहन नहीं मानेंगे। नहीं ऐसे हम भी नहीं मानेंगे, बिकॉज दैट्स टू मच ऑफ रिस्क। Yes, that's true. कि हाँ, लेकिन जब आपको पता है कि एंटीबॉडीज बन गई हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसको एक्सपोज करो ना आर्टिफिशियली एक पेट्री डिश में, क्या दिक्कत है? जैसे अपने एंटीबॉडी टेस्ट होता है कि कोई एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी कि नहीं, सॉरी एंटीबायोटिक जो होता है ना, एंटीबायोटिक टेस्ट होता है कि अपन कौन सा उसको दें पेशेंट को। ऐसे ये है, आई डोंट थिंक सो। वो मतलब ये बातें हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए। आई विल नॉट सपोर्ट दैट। मतलब एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि आपको हेलमेट पहना दिया और ऊपर से जोर जोर से हथौड़े मारें कि देखें हेलमेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कौन मानेगा इस चीज को? That's true. That's आपने ठीक ही कहा है।
और आपके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन अभी भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड क्लिनिकल ट्रायल का चल रहा है, वो तो रेगुलर। अब तो फैमिली का भी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, वो लोग भी रोज उतना ही पूछते हैं जितना ऑक्सफोर्ड पूछती है। ओके, तो अगर कितना दिनों तक चलेगा ये ये ऑब्जर्वेशन? 1 साल तक चलेगा। 1 साल तक। और अगर इस 1 साल के अंदर आपको कोई भी बीमारी हुआ, जैसे कि नॉर्मल फीवर या कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड एंड ऐसा कुछ हुआ, तो वो ट्रीटमेंट के लिए कि वो लोग क्या कुछ ऑब्जर्व करेगा या आप खुद वो ही लोग इसका? एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया कि आज हमको मान लो तो वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि अब एंटीबॉडीज हैं, कोविड इन्फेक्शन होता भी तो भी हमें एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो नहीं जिससे मिले। बिल्कुल हम बात मानते हैं, बिल्कुल ही एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही जाना पड़ता है। यूके में सिस्टम भी वैसे कोई वीआईपी कल्चर है नहीं, तो जब आपको कुछ बीमारी भी होती है तो भी आपको उतने ही दिन वेट करना है। ओके। और दीपक जी, आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है, तो वहां पे मैंने देखा है कि आपके एडवेंचर का बहुत शौक है। क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे यू वर पैराग्लाइडिंग, आपको पैराग्लाइडिंग करते हुए हमने देखा है। तो लगता है कि आपको डेंजर बहुत पसंद है। यू यू लव टू बी इन फ्रंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डेंजर। ऐसा तो नहीं है ऐसा कि ऐसा क्या और कौन सी एडवेंचर के शौक है आपके, और क्या क्या प्लानिंग है, आप थोड़ा ये शेयर कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई एडवेंचर का शौक नहीं है। पैराग्लाइडिंग इज वन ऑफ द सेफेस्ट वन। वो पूरा एक बंदा साथ में होता है, आपके पास एक वो पैराशूट होता है, उसके पास दो होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है शौक। लेकिन अभी ये जो वैक्सीन है, ये एडवेंचर नहीं था। आई थिंक एक नीड थी सबको कि एक आप सोचिए ना, साइंटिस्ट कितने दिनों से काम कर रहे थे एक वैक्सीन के ऊपर। यदि जैसे मैं पहले ही बोला था, कोई नहीं करेगा तो कौन जाएगा उसको टेस्ट करने, मतलब कोई तो टेस्ट करने जाए ना, वरना दवाई कहाँ से आएगी। ঠিকই। আর সুপ্রিয়া দি, আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব যে আপনি বোধহয় এমন অনেক কিছু জানেন, আপনি প্রথমেই বললেন যে এটা খুব প্রেডিক্টেবল যে ও এই কাজটা করবে। তো এটা আপনি কেন বললেন? এরকম কি, মানে এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনার আছে যে উনি এরকম কাজ করে থাকেন বা এরকম কাজ করতে ভালোবাসেন, এরকম প্রচুর চ্যালেঞ্জিং আছে, কাজ? প্রচুর আছে। এই যে তুমি প্যারাগ্লাইডিং বলবে, হয়তো তুমি যদি কমেন্ট দেখে থাকবে, আই ওয়াজ দ্য ওনলি ওয়ান, আমি লিখেছি যে তুমি পাগল হো, মানে ওকে আমি এটাই লিখেছিলাম যে তুমি কে পাগল হো। মানে ও ও সবকিছু করতে পারে। ওর নেচারটা এরকম, এমনিতে তুমি যদি ওর সাথে কোনোদিন সুযোগ হয়, যদি মিট করো, ও ভীষণ রেসপন্সিবল, ভীষণ অ্যাফেকশনেট, ঠিক আছে, ভীষণই লাভেবল পারসন। অ্যান্ড ওর স্মাইলটা হিজ গট আ ভেরি ইনফেকশাস স্মাইল, মানে হি ক্যান মেক ইউ লাফ, হি ক্যান মেক ইউ স্মাইল এট এনি পয়েন্ট অফ টাইম, অলরাইট। বাট বাট কিন্তু মানে খতরো কা খিলাড়ি যাকে বলে, মানে ও সবকিছু করতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ছোট ছোট এরম ইনসিডেন্ট এরম আছে। এরম এরম একটা কোনো ইনসিডেন্ট আপনার আমরা মনে পড়ছে? ইনফ্যাক্ট মানে সারপ্রাইজেস তো আছেই, লাইক এই আমি তোমায় বলছি, লাস্ট ইয়ার ও ইউকে থেকে ডাইরেক্ট এসছে আমার বাড়ি, আমার ছেলের সাথে কথা বলেছে, আমার অ্যাড্রেস নিয়েছে, হোটেল গেছে, ডাইরেক্ট গিয়ে আর রাত্রে বেল টিপেছে আমার বাড়ি 9:30টার সময়। মানে ও জানে যে আমি ওকে দেখে সারপ্রাইজ যাবো, বেল টিপে সামনে দাঁড়িয়ে, আমি মানে আমি ওকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, আমরা একটা ইনসিডেন্ট বলছি, যে ওরই বার্থডে, আমরা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ একসাথে করতাম, ঠিক আছে। ওরই বার্থডে সময় ক্লাস থেকে হি মেড ইট শিওর যে আমাদের সবার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাক, মানে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স করার পরে উই বাঙ্ক দ্য ক্লাস, অলরাইট। সবাই মিলে ক্লাস বাঙ্ক করেছি। কতজন ছিলাম, 6জন কি 7জন, একটা ফিয়েট গাড়িতে আমরা সবাই গাদাগাদি করে ভরে আমরা বাইরে ট্রিট দিতে গেছি। কিন্তু সিন্স আমাদের ভেহিকলস পার্ক ছিল আবার ইউনিভার্সিটির ভেতরেই, যেখানে আমাদের যেতে হবে আবার, মানে ইউ ওয়ন্ট বিলিভ যে আমরা ঢুকছি আর যে লেকচারার আমাদের ক্লাস নেবার ছিল সে সামনে থেকে আসছে। মানে আমরা 6জন ওই গাড়ির মধ্যে বসে আছি, ওরই বার্থডে। তো প্রচুর ছোট 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 ঘটনা আছে। অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প আছে আপনার কাছে, বোঝাই যাচ্ছে। तो आप तो यूके में है, आप मिस्टर पालीवाल से पूछ रहे हो कि आप तो यूके में हैं, तो वहां पे तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है जैसा कि हमने सुना है, तो रिपोर्ट जो आ रहा है, तो अभी वहां पे हालत कैसा है और क्या क्या रूल्स वहां पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अभी हालत बहुत ठीक है। अभी पर डे मैक्सिमम 750,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे पीक हो चुका है जो अभी इंडिया में हाल है। और यहाँ के रूल्स दो हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और एक है मास्क।
और यही 2 दवाइयां हैं अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो इंडिया में अभी बहुत बढ़ रहा है, तो अपन मास्क पहने और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जब घर वापस आए हाथ धोएं। ये 3 चीजें हैं, यदि करते हैं तो जब तक कुछ उसका वैक्सीन नहीं आता है या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता है, यही 3 चीज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और यूके और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत अच्छे ढंग से किया, तभी केसेस एकदम डाउन हो गए। ওকে। আর সুপ্রিয়াদির কাছে জিজ্ঞেস করবো, আপনি যেহেতু কলকাতায় রয়েছেন এবং আমরা জানি যে কলকাতার পরিস্থিতি কিরকম, এবং প্রত্যেকদিনই শোনা যাচ্ছে একটু একটু করে যে পজিটিভ কেসেস যে সংখ্যাটা সেটা বাড়ছে, এবং নতুন করে আবার ওই সপ্তাহে 2 দিন বা এরকম লকডাউন শুরু হয়েছে। তো আপনার কি মনে হয়, মানে আপনি কিভাবে সেটা হ্যান্ডেল করছেন, এবং আপনার কি মনে হয় যে এইভাবে লকডাউন করে কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব? দেখো, আমি আমি যেটা মনে করি যে আমাদের বেরোতে হবে, মানে সব পুরো ফুল লকডাউন করলে সেটা চলবে না। মানে নাও দিস ইজ বিকাম পার্ট অফ আওয়ার লাইফ, আমাদের এটা নিয়ে চলতে হবে। অ্যাজ দীপক বললো, আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে, মাস্ক পরতে হবে, আর হাত ধুতে হবে, উই হ্যাভ টু বি স্যানিটাইজ প্রপারলি, ভালো স্যানিটাইজেশন মেনটেন করতে হবে। এবার যদি আমাদের মানে এটা মনে করেছে, গভর্নমেন্ট মনে করেছে যে 2 দিন লকডাউন করলে আমাদের নাম্বারটাকে একটু কন্ট্রোল করা যাবে, যেহেতু এত সাডেন স্পাইক এসছে আমাদের নাম্বারের মধ্যে, তো যদি 2 দিন মেনে যদি একটু জিনিসটাকে ডাউন করে কন্ট্রোল করে নেওয়া যায়, অ্যান্ড দেন अगेन উই ক্যান স্টার্ট, মানে লকডাউন তুলে দিয়ে যদি দেখা যায় যে এটা একটা ভালো পজিটিভ ইফেক্ট হয়েছে, তো ওয়াই নট, দেখা যাক কি হয়। অ্যান্ড কিপিং ফিঙ্গার্স ক্রসড, আমার মনে হয় যে একটু কন্ট্রোল করা যাবে। একদমই একদমই, আমরা সবাই মানে ভালো কিছু হবে এরমটাই আশা করে, মানে এই আশা নিয়েই আর কি আমরা বেঁচে আছি, এরম একটা বিষয়। হ্যাঁ, मिस्टर पालीवाल, आप तो खुद एक फार्मासिस्ट है, और आपने देख रहा है कि जो बहुत सारे लैबोरेटरीज में जो वैक्सीन के जो प्रोग्राम्स चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, एज अ फार्मासिस्ट आपको क्या लगता है कि वैक्सीन कब आने वाला है? और ये जो पीपल आर थिंकिंग दैट 1 साल में कुछ ऐसा कुछ आएगा, क्या रियलिस्टिक है और ये क्या होगा? अभी 120 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें से केवल 10 हैं फेज 1 में, 10 हैं फेज 2 में, और 2 हैं फेज 3 में। तो फेज 3 में जो है उनसे ज्यादा उम्मीद आने की, एक तो ऑक्सफोर्ड की और एक चाइना की। अब ये तो नहीं पता चाइना की वैक्सीन को कितना लोग ट्रस्ट करेंगे अभी, तो अभी तो केवल यही है कि जो ऑक्सफोर्ड की है ये फेज 3 में है, और हम कोई डेट दे नहीं सकते। लेकिन आप ये सोचिए, ये ट्रायल शुरू हुई थी मार्च में, मार्च से अपन जुलाई एंड में हैं, तो इतना टाइम तो लगना है। लेकिन जितना हमको लगता है अक्टूबर में आ जानी चाहिए एक वैक्सीन, कोई ना कोई तो वैक्सीन आएगी। और अभी टाइम नहीं है कि अपन ये सोचें कि वैक्सीन इंडिया से आए कि यूएस से आए कि रशिया से आए, कहीं से भी आए वैक्सीन आनी चाहिए और जल्दी आनी चाहिए। लेकिन यदि आज जैसे इंडिया में 1 वीक पहले कहीं ट्रायल शुरू हुआ है, अब वो सोचो कि नहीं हम अगस्त 15 तक लॉन्च कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं। और एक जो बात चल रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के बाद, तो वो भी लगता है कि वो नहीं होगा, मतलब जो इम्यूनिटी है ये मतलब फेल हो जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। ये भी अभी रिसर्च का है। एक 2 इम्यूनिटीज में 2 चेंज हैं जो एंटीबॉडीज आप बोल रहे हैं। एक तो होता है जिसको वायरस हो गया, उसमें एंटीबॉडीज हैं, तो वो कई पेशेंट्स में देखी जा रही है कि उनको वापस डाउन हो रही है, मतलब उनकी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज में। दूसरी वैक्सीन वाली एंटीबॉडीज अलग ढंग से एक्ट करेंगी, उसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं आई है। जैसे अपन हर साल लेते हैं फ्लू वैक्सीनेशन जो लेते हैं बारिश से पहले, तो हो सकता है ये कोविड-19 की वैक्सीन भी, मतलब हो सकता है वैसे इस साल हर साल लेनी पड़े। अभी रिसर्च चल रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। यदि कुछ बोलेंगे फिर उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर बोलेंगे, नहीं हमने ऐसा बोला। अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी वी लिव इन होप, और लेट्स सी एंड प्रे दैट कोई ना कोई इसका ट्रीटमेंट आए। मतलब साल के एंड में हमको कुछ ना कुछ पता ही चलेगा। हमको लगता है उसको पहले ही पता लगेगा। ओके, और हमारे नवरात्रि, which is a famous festival, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए।
हमारा एक व्यूअर है अभिजीत कर्मकर, वो पूछ रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स, इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। तो आपने ये बताया, और फिर उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर अभी हुआ तक क्या तो है। हमको तो कोई दिखा नहीं, स्टिल इन प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल लंबा चलता है, लेकिन अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपने ये जो समय है, ये बहुत ही नेगेटिव खबर आ रहे हैं और नेगेटिव चीजें चल रहे हैं आसपास में। तो इस समय में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कुछ ऐसा काम किया है विच इज अबाउट पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा हुआ है उसके बाद। तो अब लोगों के लिए क्या बताएंगे कि पॉजिटिव रहने के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे लॉकडाउन के सिचुएशन में? सी एवरीबॉडी इज दिस क्वेश्चन इज प्लेइंग, बोथ फॉर यू। आप सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना कर रहे हैं, फार्मासिस्ट अपना कर रहे हैं, नर्सेस, पुलिस, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल। तो हमारा एक छोटा सा रोल था, इतना बड़ा नहीं था। तो सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें। यदि आप तो और कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहने, कम से कम डोंट बिकम अ मीडियम टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, इफ नथिंग एल्स। तो बस वही रखें, बाकी तो मतलब एवरीबॉडी इज सेंसिबल, अच्छे अच्छे ढंग से काम करें। That's it. সুপ্রিয়া দি, আপনাকেও জিজ্ঞেস করব যে এরকম একটা লকডাউন চলছে এবং প্রত্যেকে বাড়িতে বসে আছে, মানসিক দিক থেকেও অনেকে খুব হতাশ হয়ে পড়ছে বা ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসছে, কাজে যেতে পারছে না, একদম হঠাৎ করে পরিস্থিতিটা বদলে গেছে। সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন, পজিটিভ কিভাবে থাকা যেতে পারে? দেখো, এই সময় পজিটিভ নিজেকে পজিটিভ রাখতে হবে। লাইক আদারওয়াইজ কি ছিল, লোকে কাজে বেরোচ্ছিল, একটা রুটিন ছিল লোকের, হ্যাঁ, বেরোচ্ছে, 5টা লোকের সাথে দেখা হচ্ছে, রাস্তায় দেখা হচ্ছে, অফিসে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরছে। এখন কি হচ্ছে, মানে নিজেকে, মানে যারা রোজ কাজ করে তাদেরকে একটা গৃহবন্দী মতো লাগছে, মনে হচ্ছে না বাড়ির মধ্যে বসে আছে। তো ওই মেন্টালিটিটাকে চেঞ্জ করতে হবে। উই হ্যাভ টু টেক ইট পজিটিভলি। জানি এটা একটা প্যান্ডেমিক, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপশন, আমাদের কাছে অপশন নেই, তাই তো তাই জন্য নিজেকে, মানে যেই কাজগুলো আগে করতে পারোনি, হয়তো করার ইচ্ছে ছিল, কোনোদিন করতে পারোনি, সেগুলো করো, রাইট? ইনকমপ্লিট কাজ ছিল যেগুলো, সেগুলোকে ফিনিশ করো, রাইট? যে কাজগুলো রুটিন আছে সেগুলো তো করতেই হবে। আর যে কাজগুলো অনেক ভেবে রেখেছিলে, করতে ইচ্ছে আছে করার, করতে পারছি না, টাইম ফেভার করছে না, সেগুলোকে কমপ্লিট করো। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। লাইক পজিটিভিটি রাখতেই হবে, বিকজ এটা এখন চলবে, দিস ইজ গোইং টু কন্টিনিউ। সো দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আপনি তো একটা একটা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত, এবং আপনি কি আপনার আপনার যে ভাইয়ের যে এই গল্পটা, যে ইন্সপায়ারিং গল্পটা, সেটা কি আপনি সেখানে সবাইকে করছেন বা ইন্সপায়ার করছেন? না, আমি সেভাবে কাউকে আগে বলিনি, ঠিক আছে? টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, কাউকে বলিনি। মানে সে নিজের বাড়ির সবাই জানে, কিন্তু সেভাবে শেয়ার করিনি। এবার যখন এই টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা এগুলোতে কয়েকটা ওর আর্টিকেল এলো, তখন আমি শেয়ার করেছি জিনিসগুলোকে। এখন মোটামুটি সবাইরাই জানে যে হ্যাঁ, ও আমার ভাই। আর সবাই, মানে ইনফ্যাক্ট আমার সিনিয়র্সরাই ওকে ওকে স্যালিউট করেছে, কনভে আর রিগার্ডস টু হিম। সো সত্যি কথা বলতে, আগে এই জন্যই শেয়ার করিনি, আই ওয়াজ স্ক্যার্ড, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এখন মোটামুটি আস্তে আস্তে টাইম যাচ্ছে, এখন ঠিক আছে সবকিছু। আগে প্রথম শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ও সবসময় রয়েছে, মানে যাই করি, কাজ করি, দিনের শেষে একবার না একবার ওর কথা মনে পড়ে একবার। এখন ঠিক আছে। और हमारे और एक व्यूवर्स ने पूछ रहा है कि इसका कोई वैलिडिटी है या नहीं, इस वैक्सीन का कोई वैलिडिटी है नहीं, जैसे आपने कहा है कि ऐसा कुछ पता नहीं चला है अभी तक, राइट? नहीं, वैलिडिटी तो जब तक इसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता तब तक तो कोई इसको सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं लॉन्च का। लेकिन फेज 3 में किसी वैक्सीन का पहुंचना ही बड़ी बात होती है, और फेज 4 इज जस्ट लॉन्च। तो आप ये सोचिए, यदि फेज 1 में सक्सेस दिखा तो फेज 2 में पहुंची, फेज 2 में इनको सक्सेस मिला तो फेज 3 में पहुंची, और फेज 2 के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, फेज 3 में भी प्रोसेस अच्छा चल रहा है। तो मतलब क्यों नहीं होना चाहिए लॉन्च? होना चाहिए। कोई वैक्सीन हो, वैक्सीन आनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इतना टाइम हो गया इंडिया आए हुए,
मतलब यहीं फंसे हुए, फ्लाइट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, सब लोग ही फंसे पड़े, इवन इंडिया में लोग बहुत फंसे पड़े, काम पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो रहा, एक डर है, इससे वैक्सीन आनी जरूरी है। और ये जो तब तक मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक क्या कुछ मेडिसिन के खबर आ रहे हैं, जैसे कोई कुछ मेडिसिन आया है मतलब ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ हेल्प हो रहा है जो कोविड जो सीरियस पेशेंट्स है उसके लिए, तो आपको क्या लगता है कि उस मेडिसिन से क्या कैसा इफेक्ट हो रहा है? हमने पढ़ी हैं, कुछ मेडिसिन हैं, काफी कॉम्बिनेशंस हैं, तो जिस पेशेंट को जिस दवाई से फायदा हो सकता है, लेकिन इट शुड बी अ डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग, कोई मतलब गली के कोने में नीम फकीम के पास नहीं जाना चाहिए कि वो कुछ जड़ी बूटी देगा। यदि डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनका अप्रूवल है, तो क्यों नहीं यूज करें। यदि एक की भी बंदे की उससे जान बचती है तो आई विल सपोर्ट दैट बीइंग, और इट्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है आजकल, कुछ उसका एविडेंस दिखता है तो यूज होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए यदि कोई एविडेंस नहीं है। ओके और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने फिर भी आपको कंग्रेचुलेशंस लिखा है, लिखा है कि प्राउड ऑफ यू एंड ग्रेट, ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो एकदम एंड में हम ये पूछेंगे आपसे कि जो भी इंडिया में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है, मैंने पहले भी ये कहा है, तो और बहुत सारे लोगों ने बोल रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड टू join to participate in those programs as volunteers, तो उसके लिए आपका मैसेज क्या होगा? प्लीज पार्टिसिपेट करें, यदि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो जाएं। उसका प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस हो सकता है वो बिल्कुल नहीं हो, कोई दूसरा प्रोसेस हो, लेकिन ये सारे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दे आर वेरी बिग इंस्टीट्यूट, लेट इट बी एम्स, लेट इट बी वन इन उड़ीसा, चेन्नई, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। They will not take risk with human life. Please participate with full energy and please take care of yourself. That's it. আমরা আজকে খুব ইন্সপায়ারিং একটা স্টোরি শুনলাম মিস্টার পালিওয়ালের কাছ থেকে এবং সুপ্রিয়াদির কাছ থেকে, এবং আমরা আপনাদেরকে যারা অনেকেই লিখেছেন যে তারা পার্টিসিপেট করতে চান, তো তাদের জন্য উনি কিন্তু সেই সাজেশন দিলেন যে কিভাবে আপনারা সেফ থাকতে পারবেন এবং পার্টিসিপেট করতে পারবেন, যাতে কিনা একটা ভ্যাকসিন আসে এবং সেই ভ্যাকসিনটা কিন্তু শুধু আপনাকে বা আপনার ফ্যামিলিকে বা আপনার কান্ট্রিকে নয়, গোটা গোটা বিশ্বকে বাঁচিয়ে দিতে পারে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। সেরকম একটা ভ্যাকসিন আনার জন্য কিন্তু সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে, এটাই কিন্তু উনি বলতে চাইলেন। এবং আপনারা দেখতে থাকুন, এবং দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে আসার জন্য। মিস্টার পালিওয়াল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ আস both of you, and we'll meet you again very soon in a COVID free world, I think, and till then we will When I come to Kolkata, I'll meet you. Okay, thank you, and till then we will fight together. Sure, 100%. Yeah. 100%. All of us together. Chalo, Thank you. Take care, everybody. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. আমরা মিস্টার পালিওয়ালের কাছ থেকে শুনে নিলাম যে তার কি অভিজ্ঞতা, হিউম্যান ট্রায়াল কিভাবে হয় এবং কিভাবে তিনি পার্টিসিপেট করেছেন এবং তিনি কেমন আছেন। এই সংক্রান্ত আরো অনেক খবর, ভ্যাকসিন সংক্রান্ত এবং সংক্রমণের প্রত্যেক দিনের আপডেট, প্রত্যেক দিনের রিপোর্ট আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আমাদের ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন, kolkata24x7.com, এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা দেখছিলেন কলকাতা 24x7।